welcome back to the new session. Okay, actually I've begun the first chapter of chemistry, that is chemical reactions and chemical equations. But to understand that chapter very well, plus the second chapter which is acid, base and salt, the third chapter, metals and non-metals, plenty of chemical reactions are there. But how those compounds are formed, how that formula is to be remembered. Alright? To learn that, we'll have to go for basic chemistry. Alright? And this is part 3. In part 2, that is the previous session, we saw how to frame the formula. Right? Yes, formula. Using positive ion and negative ion. The valencies of ions you should learn. I told you how to learn. So that is short trick how to form the molecular formula of compound, which may be acid, base, or salt. Alright? Today we are going to learn formation of ionic bonds or ionic compounds. How ionic compounds are formed. Okay? The very first formula, very first ionic compound is sodium chloride. This is one ionic compound. Formula you know, yesterday I showed you the trick. Using that, yes, you will write Na plus 1, Cl, so valence is same. So the formula is Na. But this is the trick to find the formula, to frame the formula, to derive the formula. But actually, how one ion of sodium combines with one ion of chlorine to form sodium chloride. We are going to learn that. Okay? But for that, you will have to know the constituent elements of sodium chloride. Which are the constituent elements of sodium chloride? Sodium and chlorine. For those who don't understand the word constituent. Constituent elements. Okay? If you prepare khichdi, hot pot, right? I think 5 basic substances are required. Rice, dal, salt, turmeric and water. बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, but these are the 5 basic constituents required to prepare khichdi. So dal, rice, whatever, salt, water, turmeric, haldi, alright, they are constituents of khichdi. क्योंकि खिचड़ी को वो ये 5 चीजें बनाती है, right? So what forms the sodium chloride? Sodium and chlorine. So you need to know the constituent elements. So one is sodium and other is chloride. Yes. Okay. The constituent elements are sodium and chlorine. And you know the symbols. Na for sodium and Cl for chlorine. But the formula of chlorine is Cl2, not Cl. The symbol is different. Cl is the symbol and the formula of chlorine is Cl. Okay, we'll come to that later. Yes, if you want to know how that ionic bond is formed between these two constituent elements, hence forming ionic compound, you need to know their atomic numbers. What is the atomic number of sodium? 11. And that of chlorine? 70. Atomic number of sodium is 11. And that of chlorine is 70. Alright. Once you know the atomic number, let's write down the electronic configuration. What is the electronic configuration of sodium? 2. Actually 11 are the total number of electrons. Out of that 2 electrons you can place in the first orbit, because in the first orbit you will have maximum of 2 electrons only. So those are subtracted, so remaining are none. Now in the second orbit, maximum electrons that can be in the second shell is 8. So वो 8 दे दो और minus कर दो, बचा 1. So that will be the third. So 2, 8, 1. उसे कहते हैं electronic configuration. Electronic configuration. Okay, it is electronic configuration of sodium. Similarly, let's find out the electronic configuration of chlorine atom. First orbit में, second orbit में 2 और 8, 10. Out of 17, 10 are gone. 7 are left. Okay.
the outermost orbit in each of them is the third orbit. All right. First orbit completely filled, second orbit completely filled, third orbit is incomplete. So if the outermost orbit, the last shell, is incompletely filled, then such shells or orbits are called valence orbits. They are called valence orbit. And when the orbit is valence, outermost orbit is not completely filled, then these atoms are unstable. These atoms are unstable. Whether the atoms are stable or unstable, you can very easily know from the electronic configuration. 281, one electron is free. 287, 7 electrons are free, valence electrons. So the last orbit is not completely filled. इसे कहते हैं unstable electronic configuration. Unstable. So if electronic configuration is unstable, automatically that element या that atom is unstable. ये लड़का है ना, बहुत गाली गलौज करता है, गुस्से में किसी को धक्का मारता है, हाँ, किसी को थप्पड़ मार देता है, क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने माँ बाप का कहना भी सुनता है, गुरुजन का कहना सुनता है, एल्डर्स का कहना सुनता है, so as he grows up, he becomes mature और stability आती है. He wants to become stable. All right? अब तो you are much grown up और आपको पता है गाली क्या है, लेकिन 2 साल का बच्चा जिसको पता नहीं, he went on the street to play, वहां 2 गाली सुनी और घर पे आके पापा को बोला, उसने ऐसा बोला, because he is unaware, उसको पता नहीं है, वो गाली दे भी देगा, right? Okay. क्योंकि स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी आएगी. सो एवरीवन, व्हाट आई मीन टू से, कि जो अनस्टेबल है वो हमेशा चाहेगा कि वे स्टेबल हो जाए. सो एवरी अनस्टेबल थिंग हैव टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल. सो इफ दिस 2 एटम्स आर अनस्टेबल, दे आल्सो वांट टू बिकम स्टेबल. स्टेबल होने के लिए उसके पास 2, स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड करना पड़ेगा उसको. वो किस तरह करेगा, हाउ इट विल कंप्लीट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन हिम, मतलब डिपेंड्स ऑन द एटम. ऑलराइट, ओके. तो वह कैसा करेगा? इट हैज 2 ऑप्शंस. ये एक चीज ध्यान में रखना, यदि फर्स्ट ऑर्बिट हो ना, तो यू नो मैक्सिमम एकोमोडेशन इज ऑफ 2, सो डबलेट कहते हैं. It has to satisfy. सेकंड ऑर्बिट हो तो 8, थर्ड ऑर्बिट हो तो 8 और 18, फोर्थ हो तो 4 स्क्वायर 16 2 जा 32, फिफ्थ हो तो 5 स्क्वायर 25 2 जा 50. लेकिन इसका सब डिवीजन करेंगे तो आखिर में 8, सब ऑर्बिट लेंगे तो आखिर में 8, सब ऑर्बिट लेंगे तो आखिर में 8. सो 8 8 8, दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट टू बिकम स्टेबल. स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में डबलेट, बाकी के कोई भी ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड? 8. सब ऑर्बिट में टोटल 8 नहीं, सब ऑर्बिट. एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. दिस इज कॉल्ड, दिस इज डबलेट रूल. सो डबलेट रूल अप्लाइज फॉर ओनली द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट शेल, and rest of the cell, second, third, fourth, octet rule has to be applied. So that means here there is 1 electron, we need 8. Here there is 7 electron, we need 8. And both this, sorry, yes, 1. Total 8. Total 8. Here there is 1, we need 8. Here there is 7, we need 8. 8 चाहिए, 7 की जगह पे, 1 की जगह पे 8 चाहिए. You understand? तो इट हैज 2 चॉइस. बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन पार ले लो. एनवायरमेंट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो है. या तो फिर या गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन, ये गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन. आसान क्या है इसके पास? चॉइसेस आर 2, बट विच इज इजियर? गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये वाला एटम सोडियम, ऑलराइट, जो एटम है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8
1 है, क्या करता है? इट गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन, छोड़ देता है, एंड इट बिकम्स सोडियम पॉजिटिव आयन। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो, और जब लेगा तो -1, 1 लेगा तो -1, 2 लेगा तो -। हम देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो चला गया, सिर्फ 2 ऑर्बिट रह गए, 2a, and now you can see that is stable electronic configuration. इसके पास सिर्फ 2 ऑर्बिट है, and both the orbits are completely filled. So sodium ion is stable, sodium atom is not stable. और कुछ उल्टा, एटम इज न्यूट्रल, नो चार्ज, क्योंकि उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन, सो +11 -11, सो नेट चार्ज इज 0। लेकिन इसके पास 11 प्रोटॉन है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन तो गया, सो ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, सो +11 और -10। अब दिस इज 1 और +1, वही तो चार्ज है यहाँ +1। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? ऑलराइट, सो एटम्स ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। ऑलराइट, चलिए इसका तो खेल खत्म हो गया, अब बारी इसकी आई। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, सीधा एरो लेगा, और देना हो तो ऑल 7 इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 2 ऑर्बिट रह जाएंगे। So out of the 2 choices, which does the chlorine atom opt? Gain 1 electron. 1 electron लेगा, that is easier. So chlorine atom +1 electron, 1 लिया, and becomes chloride ion. 1 लिया, so -1. इसको समझा दूं मैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक, this is atom of course, and this is ion. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, 1 आने की वजह से 2 8 8, there it is. This is stable electronic configuration, so chloride ion is stable, and ये unstable है, so chlorine atom is unstable. alright, ये चार्ज -1 कैसे बना? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन थे, कितना एटॉमिक नंबर 17 है ना, so 17 प्रोटॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 18 +17 और -18, क्या हुआ? डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज द चार्ज। इज दैट क्लियर? अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सोडियम और क्लोरीन। जब आसपास मिल गए ना, वो बोलता है क्लोरीन मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सोडियम क्या बोलता है? मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना ही है, मुझे भी स्टेबल बनना है, आई वांट टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों स्टेबल बन गए, बट one formed positively charged ion, the other formed oppositely charged ions will attract each other. So due to opposite charge, there will be force of attraction between positively charged sodium and negatively charged chloride ion. Chlorine नहीं, वो chloride बोलते हैं ion. All right, but they will form bond only if the valencies are equal. Valencies are same. Valencies are balanced. So let's look at the valency. What is the valency of this ion? 1. What is the valency of this ion? -1. Very good. 1 1 equal. Do you understand? So they are going to combine. एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, दोनों कंबाइन हो गए. दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्चुअली. दिस इज आयनिक बॉन्ड. बॉन्ड को निकाल दो तो इसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड दैट इज हाउ यू गॉट इट. ये रहा. सी हाउ यू गॉट दैट फॉर्मूला नाउ. कैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ. You understand? If I sum up these two equations, इसको सोडियम Na प्लस क्लोरीन Cl, ये तो दिया था और लिया था, कैंसिल कर दो. ऑलराइट, सो एरो के लेफ्ट हैंड साइड सोडियम और क्लोरीन,
एरो के राइट हैंड साइड एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड, विल दे कंबाइन, विल दे फॉर्म बॉन्ड? क्यों? क्योंकि वैलेंसी बैलेंस। सो कितने सोडियम? फर्स्ट यू हैव टू राइट सोडियम आयन, व्हाट इज द सिंबल? एंड फॉर क्लोरीन एक ही आयन, तो एक ही लिखा। 2 हो तो सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना है, 3 हो तो सबस्क्रिप्ट में 3 लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दिस क्लोरीन इज नेवर अ सिंगल एटम, वो हमेशा डायएटॉमिक है। ये मॉलिक्यूल हमेशा डायएटॉमिक है, क्लोरीन इज नेवर सिंगल। तो मुझे एक और क्लोरीन लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 है, इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन, -1 सो वैलेंसी -2, और यहां तो मुझे एक और सोडियम एटम भी लेना पड़ेगा रिएक्शन में। अब +1 +1 +2, अब बैलेंस्ड हो गए। सो हाउ मेनी सोडियम एटम आई हैव टेकन? 2. यू अंडरस्टैंड? एंड हाउ मेनी क्लोरीन एटम आई हैव टेकन? 2. और फॉर्मूला तो बन गई है। सो ये सोडियम एक क्लोराइड के साथ एक मॉलिक्यूल बनाएगा, दूसरा सोडियम बीज दूसरा क्लोराइड के साथ दूसरा, सो 2 टाइम्स, यू अंडरस्टैंड? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेटर वी आर गोइंग टू सी। अभी आप इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करो, हाउ यू गॉट दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं Al2O3। चलो, हियर यू आर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट्स एन आयनिक कंपाउंड। एल्यूमिनियम Al, बाद में देखते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इस बार। You know, aluminium is one constituent of this compound and oxygen is other. You will need to know the atomic number. For aluminium it is, and for oxygen it is. The electronic configuration 2, 8, 3. Electronic configuration of oxygen 2 and 6. ये completely फिर इसको निकाल, right? इसको 4 के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। 4 से लेस तो लूज, 4 से मोर तो गेन। इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 से कम है, सॉरी ज्यादा है, तो इट विल गेन। कितना लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना गेन करेगा? 8 बनाने के लिए इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? Both are unstable electronic configuration, so both the atoms are unstable. To become stable, they will either lose or gain. We have already seen aluminium is going to lose 3 electrons and form aluminium +3 ion. Now I'm not writing atom, ion and those electronic configuration. All right? चलिए दूसरा, oxygen. Oh, yes, it is going to receive 2 electrons, उसने रिसीव किया and then gives oxide -2. So दोनों स्टेबल तो बन गए और कंपाउंड कौन सा बनने वाला है वो भी पता है, alright? लेकिन valencies are not equal. Valencies are not equal. Children, when valencies are not equal, you take the LCM of them. 2 और 3 का LCM निकालो. 2 1s are 3 LCM, 3 1s are. So what is the LCM? 6. तो यहाँ 6 बनाना हो तो 3 multiplied by what? 2. तो आपको 2 एटम लेना पड़ेगा। 2 एटम लिया तो 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और एक में से 3 मिल रहा है तो 2 में से 6। अब यहाँ 6 LCM है, 2 है, 6 बनाने के लिए 2 3। Please try to understand. So I'll take 3 atoms of तो एक एटम को 2 चाहिए तो 3 एटम को 6 और एक एटम 1 आयन देगा तो 3 एटम्स 3 आयन्स देगा। समझ में बात आ गई? ऑलराइट, एवरीथिंग इज बैलेंस। देखो 6 इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एरो के लेफ्ट और एरो के राइट में सेम हो तो वैलेंसीज आर मैच्ड।
3 2s क्योंकि 2 आयन है ना, 3 2s +6, 2 3s -6, +6 -6. सो फॉर्मूला क्या बनेगी? पहले हम ओके I'll write this Al2 of course plus 3O gives, बोलिए Al एल्यूमिनियम एटम आयन कितने? 2 है और ऑक्साइड आयन 3. Al2 अब सोचते हैं, चलिए एल्यूमिनियम याद करो Al प्लस, ऑक्साइड याद करो O, मैंने शॉर्ट ट्रिक दिखाई थी Al2O3, that is aluminum oxide. But this is actually how it forms. You understand? अब एक और प्रॉब्लम है कि ये 2 कभी अकेला नहीं होता है ऑक्सीजन, H2Cl2O2 साथ में ही रहता है. तो ये तो 6 हो गए, तो 3 और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन और 3 और ऑक्साइड, है ना? Are you getting me? तो फिर इसको भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि टोटल कितना हुआ? 3 2s 6, 3 2s 6, -6 -1, जबकि ये 3 2s +6 ही है. तो एक और एल्यूमिनियम ले लेते. ऑलराइट, हाँ 2 एल्यूमिनियम पेयर में, देन 2Al प्लस, तो ये +6 हो जाएगा. सो 12. ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. ऑलराइट, सो देखो 2 + 2 एल्यूमिनियम कितने लिए? 4. ऑलराइट, ये 3 2s 6 हो गए और ये एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, दूसरा बना, सो 2. बट दिस इज नॉट द वे ऑफ बैलेंसिंग. बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का अगेन ट्रिक है, तरीका है. ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टफ है, ना समझ में आए तो चिंता की बात नहीं है. डोंट वरी, क्योंकि बैलेंसिंग इज डन इन अ डिफरेंट वे. ओके, ये फॉर्मूला तो आपको ऐसे मिल जाने वाली है, राइट? ओके, बट सी दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म. दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ionic compound, magnesium chloride. Which one? Magnesium chloride. Magnesium chloride. चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चेंज लाऊंगा आखिर में जहां नहीं समझ में आ रहा है वो बात. ओके, विच आर द कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स? Magnesium and chlorine. The atomic number? So electronic configuration? 2 Chlorine atomic number? So electronic configuration? These are completely filled. Alright, ये 4 से कम, so it will lose 2 electron. ये 4 से ज्यादा, so it will gain, लेकिन एक ही जरूरत है, so gain 1 electron. Alright, losing will turn ion into atom into positively charged ion, and gaining will turn the atom into negatively charged ion. चलिए, magnesium Mg, alright, it's going to lose by forming magnesium ion +2 या 2 plus. बुक में ऐसे दिया है, you can write whatever is comfortable for you. +2 electron. फिर chlorine atom, it gains 1 electron and forms chloride ion. Yes, कभी कभी आप 1- भी लिख सकते हो, no problem. All right, I have a habit of writing +2 -1 ऐसे, right? इलेक्ट्रॉन 1 2 वही बैलेंस नहीं है तो वैलेंसी भी बैलेंस नहीं होगी. What is the valency? 2 and here it is 1. तो 2 क्लोरीन ले लेंगे. So I'm writing here 2 chlorine. So 2 इलेक्ट्रॉन, एक को एक चाहिए तो 2 को 2 चाहिए और 2 क्लोराइड आयन. 2 क्लोराइड आयन. अब बेसिक फॉर्मूला प्लीज. Mg प्लस 2Cl जो भी है दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या +2 हो गया ना, +2 -2 हो गया ना. सो मैग्नीशियम आयन इज जस्ट 1 एंड क्लोराइड आयन आर 2. तो यहां ऐसे लिखना है,
लेकिन हमारी फॉर्मूला में क्लोरीन कभी अकेला होता तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ Mg और मैं क्लोरीन लिख रहा हूँ 2Cl की जगह पे Cl2, इट मींस वन एंड द सेम. आई वोंट राइट 2Cl, आई एम राइटिंग Cl2. और ये हो गया Mg. सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. Let's take magnesium oxide. Mg12 oxygen 826. ये completely filled निकाल दो. 2 से कम है so lose करेगा 2 इलेक्ट्रॉन. 4 से कम है, राइट? 4 से ज्यादा है तो वो गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, राइट? So magnesium atom on losing 2 electrons gives magnesium plus 2 ion. Oxygen atom on gaining 2 electrons form oxide O minus 2 ion. अब देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लेफ्ट राइट में सेम है, so मतलब इट इज ऑल बैलेंस प्लस 2 और माइनस 2 बैलेंस. So you can sum up. एक मैग्नीशियम एटम है प्लस एक ऑक्सीजन एटम है. इट गिव्स एक आयन ऑफ मैग्नीशियम सो Mg और एक आयन ऑफ प्लस. सो दिस इज द फॉर्मूला. याद करो मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्साइड O. बैलेंस इज द सेम सो डायरेक्टली यू राइट डाउन Mg. सो दैट इज द फॉर्मूला. मैंने कोई गड़बड़ की है, O2 नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ O. ऑलराइट. अब ये मैच नहीं होता है तो मैं अब यहां नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ Mg लिख देता हूं, O2 लिख देता हूं और MgO, क्योंकि फॉर्मूला ये बदलने वाली नहीं है. ऑलराइट. अब O कितने हैं? 2. तो आई कांट राइट 2 हियर. ये तो फॉर्मूला ही बदल गई. हाँ, सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते, प्रीस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं. तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2. तो यहां आगे 2 लिखो तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन इन दैट प्रोसेस 2 मैग्नीशियम बन गए तो यहां 2 लिखो. अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो सर बता रहे थे कि भाई यहां तो O2 होगा तो एक और O लेना पड़ेगा, O minus 2, तो एक और मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, Mg plus 2 plus 2E. राइट? तो बन गया ना 2 मैग्नीशियम और O सिंगल O2 बन गया और एक MgO और दूसरा MgO, 2 MgO बन गया ना. ओके, तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो कठिन ही है, राइट? बट दिस इज अभी ये जो प्रोसेस मैंने किया दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. इन दिस चैप्टर इटसेल्फ वी आर गोइंग टू लर्न द व्हाई बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज एसेंशियल. इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. During the chemical reaction, an atom can neither be created nor destroyed. So, in the reaction system, whatever is the masses of a reactant, same will be the masses of products. In 9th standard, you have learned what are reactants and products. But when I explain, again I'll revise those terms. Okay? So, that was magnesium oxide. Aluminium chloride. Next, aluminium chloride. Aluminium 13,283 chloride. I'm writing little bit quickly because now you know. 2,8 हो गए. More than 3, so lose. और वो 3 less, more than 3, 4. Less than 4, what I'm speaking, less than 4 lose, more than 4 तो इक्वल गेन, लेकिन गेन करने की जरूरत सिर्फ 1 है. चलिए, एल्यूमिनियम Al is going to lose
3 electrons and form aluminium plus chlorine atom is going to gain 1 electron and form chloride minus 1. अब आप समझ सकते हैं +3 माइनस, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा. So I'll take instead of 1 atom of chlorine, 3 atom of chlorine. So instead of 1 electron, 3 electrons will be gained and 3 chloride atoms. If you sum up Al plus 3Cl gives aluminium ion is just 1 and chloride ion is 3. वही तो है. Aluminium Al plus 3 chloride Cl minus 1. So Al1 Cl3. The same formula you got. लेकिन इसको हम थोड़ा करेक्शन करेंगे क्योंकि यह कभी अकेला नहीं होता है. So I'm writing aluminium plus Cl2. इसको भूल जाओ, फॉर्मूला सिर्फ लिख दो Al2. इसकी फॉर्मूला करेक्ट है, Al का सिंबल और फॉर्मूला करेक्ट है. इसकी फॉर्मूला once you got you have to write that only. लेकिन क्लोरीन की फॉर्मूला Cl2 है. अब बैलेंस करेंगे. क्लोरीन कितने हैं? 2. यहाँ 3 तो गड़बड़ हो गई. कैल्शियम 2 और 3 कैल्शियम 6, दोनों जगह पे 6 चाहिए. 3 multiplied by 2 multiplied by 6 chlorine, 6 chlorine. लेकिन in that process aluminium became 2. सर यहाँ लिख दूं तो चलेगा ना? नहीं, वो तो फॉर्मूला ही बदल गई. हमको फॉर्मूला नहीं बदलना है, फॉर्मूला वही रहेगी. So now this is a balanced chemical equation. Is that clear? Let's see the last ionic compound, how that compound is formed, and that is sodium oxide. Sodium oxide. All right. Sodium is one of the constituent element with 11 atomic number. So 2, 8, 1. Oxide 8 is the atomic number. Electronic configuration 2, 6. ये completely filled है. ये lose 1 electron. This gain 2 electrons. So let's see. Sodium atom will lose 1 electron and form. I'm writing that first. ये plus 1 electron तो plus 1, 2 electron तो this oxygen it gains 2 electron. यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं. Sorry, this is O or minus, right? Plus 1 minus नहीं चलेगा. यहाँ 2 कर दो. 2, so 2 ions and 2 electrons. Double, सबका double, जो भी हो उसका double. All right. Now 2 ones are 2 and minus 2. Valencies are valence. So now you can write 2Na plus O gives sodium ion 2 है, so Na2 और ऑक्साइड आयन 1 ही है. लेकिन अगेन यहाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, राइट? वी नेवर राइट. ओके, Na का सोडियम का सिंबल Na ही है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, लेकिन फॉर्मूला इसका सिंबल भी Na है, फॉर्मूला भी Na है, और इसकी फॉर्मूला हमने जान ली Na2O. अब बैलेंसिंग करेंगे. ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है. 1 और 2 कैल्शियम 2 होता है, दोनों जगह पे 2 चाहिए, तो यहाँ तो है ही. यहाँ 2 लाने के लिए प्रिस्क्रिप्ट प्री पहला आगे. ओके, लेकिन इन दैट प्रोसेस 2 2 जा 4 सोडियम हो गए, तो यहाँ तो 1 ही है, तो आगे 4 ही. Now this is a balanced chemical. Is that clear? So that's all that we have in this session, okay, where we learn how to understand or form the ionic compound, how ionic bond is formed, and hence how ionic compound is formed, and how we are getting that actual formula of ionic compound. See you then in the next session. Till then, goodbye.